80 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। 1200 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें ये सारी सीजर्स हुई हैं। सीजर्स में करीब 500 किलो चरस है, 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ है, 180 किलो हेरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा था। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखनी थी। थैंक यू। सर, ये जो ड्राइवर आपने कहा आइडेंटिफिकेशन हो गई है, ये कहाँ का है सर? ये अभी तफ्तीश का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता। सर, जो ये पैसा इन्होंने उगाना था उसका इस्तेमाल क्या नार्को टेररिज्म में होना था, उसका कोई ऐसा मिला कोई पुख्ता सबूत है? पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये केस की अभी शुरुआत है, तो आगे जब तफ्तीश बढ़ेगी तब बता दिया जाएगा। Where from this consignment came? ये कश्मीर वैली की तरफ से आ रहा है, श्रीनगर। आया कहाँ से? जो पिक हुआ है ये कंसाइनमेंट ये श्रीनगर से हुआ है। आगे तफ्तीश And the truck was on its way to which place? पंजाब की तरफ जा रहा है। So important question. Once again, the former Chief Minister Mehbooba Mufti, she is casting aspersion on encounter that took place yesterday at Rambagh. You don't think that she, instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersions and doubt upon the people and providing handle to Pakistan? See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated: Mehran, Arafat and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of TRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Taiba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible along with his associates for the killing of our sub-inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha, in which 1 innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Miran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense
I think this is absolutely not justified. सर एक बार हिंदी में, सर एक बार हिंदी में। कल का जो एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ राजबाग एरिया में, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनका सरगना मीरान था। ये श्रीनगर का रहने वाला था। इसके 2 साथी पुलवामा जिले के थे, जो काफ़ी लंबे अरसे से पहले अब्बास शेख, जो TRF का चीफ था, उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद मीरान शाला के साथ काम कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक्स और बाकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग जिम्मेवार थे स्कूल प्रिंसिपल और उनके साथ एक और टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे मीरान अली, जो बरबरशाह का रहने वाला है, उसकी हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे ग्रेनेड अटैक के लिए, जिसमें एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया था और 3 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इनके नाम थी। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया में अजीब तरह की बेबुनियाद बातें करके इनको इनोसेंट साबित करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी राय है कि ऐसे लोग दोगलापन छोड़ के, काले चश्मे उतार करके हकीकत को देखने की कोशिश करें और कातलों को बेगुनाह कहने की हमाकत ना करें। सर, जो जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद क्या जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं या बाकी जो लोग हैं, क्या क्योंकि उनकी अभी भी इनसिक्योरिटी का माहौल है वहाँ पे, खासकर जो वहाँ पे जॉब करते हैं माइनॉरिटीज़, तो उनके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? और दूसरा, जो TRF या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे के दिनों में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होने वाली थी जिससे उनका जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो गए? रिक्रूटमेंट कहाँ तक पहुँची? क्या रिक्रूटमेंट कोई डाउनफॉल आया है? देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है कि सुरक्षा के माहौल में बेहतरी हो। जब से ये किलिंग हुई तब से लेकर के दर्जनों कामयाब ऑपरेशन चले हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और मैं ये बता दूं कि हर वो दहशतगर्द जो सिविलियन किलिंग में शामिल था, हाल में जो सिविलियन किलिंग हुई, वो सब के सब इन एनकाउंटर्स के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द जिसका नाम बासित है और जो कुलगाम का रहने वाला है, जो बाहर से आए हुए बेगुनाह लोगों की किलिंग में शामिल था, उसके अलावा भी कुछ सिविलियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल था, वो बचा है। कार्रवाई जारी है, तलाश जारी है, और लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे से अपनी जगह काम करें, ये हमारा कहना है। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर तरह की वो कोशिश कर रही है जो माहौल को और बेहतर। इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनकाउंटर हुआ, गुरेज और बांडीपुर के पास में इनकाउंटर हुआ, तो उसमें लोग मारे गए। और जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पहुँचे हैं उनकी तलाश जारी है। मगर मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और इन कोशिशों को नाकाम करने की कार्रवाई जारी रहेगी।